Fourth question is same one. This will be for homework. This will be for homework for you. क्या ये show that the equation है ना, general equation of second degree x and y represents a pair of lines. Same one. क्या ये you have to show that delta equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0. First one is you have to show that pair of lines and this equation should follow this condition, and also find the angle के लिए सेम फार्मूला ये तुम खुद ले सकते हैं. tan theta equal to 2 into under of h square minus ab by a plus b. Here a plus b is not equal to 0. Now see carefully. पहली कंडीशन क्या है? This equation should represent a pair of lines, यानी this will be equal to 0. And second one, find the angle between the lines. Then tan theta equal to. Fourth question will be homework for you. Fifth में question number 5. Fifth में क्या है? Find the separate lines by the following equations. 5 में पहला क्वेश्चन देख लो. x 3 into x minus 2 y plus 1 plus 2 into y plus 1 whole square है ये. x square x into y and 2y square है ना. देखो ये है स्टैंडर्ड है. x square x into y square यानी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या है ये? कोएफिशिएंट पहला 1 और ये लास्ट वाला कोएफिशिएंट 2. 1 into 2 है. 1 into 2 यानी 2 के फैक्टर्स जिनका प्लस कितना होगा? 3 है ना. ये 2 into 1 है ना. You can take directly x minus 2 whole square. देख लो ये जो 3 into xy है ना, 3 into xy it can be taken as x 2 into x minus 1 y plus 1 minus 1 into x minus 2 y plus 1 है ना. ये क्या है? ये 2 into 2 ये 2 टाइम्स है और minus 1 टाइम्स 2 और ये 1 becomes 3. अब last term will be as it is. ये 2 into y plus 1 whole square. देख लो फिर क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये पहले दो टर्म और ये लास्ट दो टर्म, इसमें से कॉमन क्या है? x minus 2 कॉमन लो. क्या मिलता है? ये x minus 2 माइनस ये 2 into y plus 1 रिमेन्स माइनस. इसमें क्या है कॉमन? ये है y plus 1 कॉमन लो यानी x minus 2 ये माइनस और ये प्लस यानी minus 2 into 8y plus 1 एग्री का. देखो ये क्या है? y plus 1 and it is equal to 0. ये सेम है ना. अगेन इसको अगेन कॉमन लो. x minus 2 into y plus 1 ये पहली लाइन. दूसरी लाइन x minus 2 यानी बचे वाला पार्ट क्या है? ये x minus 2 और वो क्या है? minus y plus 1 क्या है? ये x minus 2 minus 2y minus 2 equal to 0. x minus 2 minus 1 minus y minus 1 equal to 0. क्या है फिर? ये x minus 2y 2 और ये minus 2 minus 4 and x minus y minus 2 minus 1 minus 3. These two है ना. ये तो क्या है? जनरल लाइंस है. These two are equation of general lines which are separated from this one. देखो ये क्या है? Similarly, then next one also देखो ये क्या है? Question number 5th में second question देखो same है. क्या है? 10 into x plus 1 whole square plus x plus 1 y minus 2 और minus 3 into y minus 2 whole square. देखो है ये. देखो ये है x minus 2 x minus 2y minus 4 then x minus y ये क्या है? minus 2 minus 1 minus 3 minus
-3. Question number second from fifth one, same. X square x into y minus 3 into y square. This is also homogeneous equation, यानी quadratic equation के फॉर्म में. हाँ, फिर क्या ये फर्स्ट इंटू ये लास्ट a into 3 30 फैक्टर्स ऑफ 30 जिनका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस कितना होना कुछ नहीं यानी 1. 6 into 5 आता ना 6 minus 5 यानी 1 और 6 into 5 यानी 30 है. हाँ देख लो 30 into x plus 1 whole square plus 6 into x plus 1 y minus 2 ये 6 हुआ कितना ये माइनस 5 into x plus 1 y minus 2 ये लास्ट टर्म and it is 3 y minus 2 whole square. हाँ क्या ये फिर पहले दो टर्म में 10 और 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम है ना 10 और 6 में दो कॉमन निकलता और x plus 1 क्या ये कॉमन लेने के बाद डिवाइड करना 2 5 जा यानी 5 into x plus 1 2 3 जा 3 into what ये कॉमन है क्या बचा y minus 2. हाँ सिमिलरली फॉर हियर -5 और -3 ये कॉमन नहीं कितना क्या कॉमन है y minus 2 minus y minus 2 कॉमन लो फिर क्या बचा ये 5 into x plus 1 और ये माइनस और ये माइनस बिकम्स प्लस माइनस माइनस प्लस 3 into y minus 2 equal to हाँ ये है कॉमन ये लो कॉमन क्या है 5 into x plus 1 plus 3 into y minus 2 है ये वाला ना equal to 0 and नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट ऐसा ले सकते हैं इनटू. हाँ ये पहला इक्वेशन है धीरे और सेकंड बचे वाला है 2 into x plus 1 minus y minus 2. देखो क्या है मल्टीप्लाई करो 5x plus 5 3y minus 6 बाद में 2x plus 2 minus y minus 2 equal to देखो क्या है 5x plus 3y 5 minus 6 यानी -1 और दूसरी लाइन है 2x minus y plus 2 और ये -2 है ना ये +2 और इधर वाला ये +2 और इधर वाला क्या माइनस है ना क्या तो देखो बराबर माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस +2 कितना होगा फिर ये 2x minus y +2 यानी +4. These are two separate lines by this equation. Question number 5 में देख लो क्या है हमारे पास क्वेश्चन. You have to find the separate lines. ये पहला वाला है और ये दूसरा सेकंड है. हाँ then question number 6 देख लो क्या है वो. Question number 6. You can see your PDF, PDF of textbook file है हमारे पास है already. हाँ then this question number 6 क्या है find the value of k if the following equations represents a pair of lines. हाँ क्या है क्वेश्चन देखो. हाँ पहला वाला 3x square plus 10xy plus 3y square plus 16y plus k equal to 0. x square whatever may be x square xy y square y k यानी this is the general equation of second degree in x and y. Compulsory we have given this equation represents a pair of lines यानी मालूम है ना हमें कंडीशन. Since this equation ये जो इक्वेशन है देखो हाँ since given equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is general equation of second degree in x and y represents a pair of lines. Pair of lines यानी one condition pair of lines. देखो हाँ since given equation 1
represents a pair of lines. Pair of lines. Therefore, मालूम है ना ये d equal to ABC plus 2FGH, इसको हम ये d सिंबल ले सकते हैं माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, यानी हमें क्या होना ABC और FGH। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है ना, ये पहला 6 में पहला इक्वेशन ये है, इसको कंपेयर करो 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 50, ये है तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है ना। इसको कंपेयर करो, हमें होना a b c और f g h कंपेयरिंग विद a equal to 3, 2h equal to 10, b equal to 3, 2g equal to 0, h नहीं है यहाँ पर, then 2f equal to 16 और c equal to ये कांस्टेंट क्या है, c equal to k, फिर a equal to 3, h equal to 2, 5 था, b equal to also 3, g equal to 0, then f equal to कितना है a और c equal to k, क्या है देख लो। गिवन इक्वेशन में डिफरेंस पेयर ऑफ लाइन्स यानी इक्वल टू कंपल्सरी 0, a यानी 3 है, b यानी also 3 और c यानी क्या है k प्लस 2, f कितना है 8, g कितना है 0 है, ये छोड़ दो 0, g और h यानी what 5 माइनस a यानी 3, a f स्क्वायर यानी 64, देन माइनस b कितना है 3, g स्क्वायर यानी 0, c यानी k और h स्क्वायर यानी 25। अब देख लो फिर 3 3 9, k ये 0 है छोड़ दो, माइनस 3 4 12, 64 into 3, 3 4 12 यानी 18 plus 1 19, ये 0 है, माइनस 25, k equal to 0 ना था, फिर ये 9 minus 25 यानी minus 16, k equal to 192 यानी k equal to ये माइनस आता 16 1 जा 16, 3 बचे यानी 32, 16 2 जा ये k का वैल्यू कितना है हमारे पास -12। वो दीजिए हाँ, पहले क्या होगा ये इक्वेशन हमें बता, कंडीशन है हमारे पास पेयर ऑफ लाइन यानी कंपल्सरी दिस विल बी 0, उसके लिए मुझे क्या होना ABC और FGH, ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें से A 2H B 2G F और C कंपेयर करके A H B G F C निकालो और ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट कांस्टेंट वैल्यू K। देन नेक्स्ट वन ये सेकंड देख लो, इसमें से सेकंड AXY प्लस 10x प्लस क्या है ये 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है ना xy यानी जनरल xy x y और ये 4 यानी क्या है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y है ना। कंपल्सरी kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस क्या है 4 इक्वल टू 0। कंपल्सरी देख लो क्या है ये गिवन इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस है ना। गिवन इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। कंपल्सरी ले लो, a का वैल्यू x स्क्वायर नहीं है 0, xy है ना, k यहाँ पर y स्क्वायर एब्सेंट है 0, x यानी 2g 10 है ना, x यानी 2g 10, अब ये y यानी 2f कितना है 6 और c यानी व्हाट एक कांस्टेंट कितना है c का वैल्यू 4। देखो क्या है फिर a के लिए 0 है, h के लिए k/2, b के लिए 0 है, g के लिए 5, देन f के लिए 3 और c के लिए 4। Given equation 1 represents a pair of lines यानी compulsory is equal to this will be equal to 0, a यानी क्या है 0, ABC 0 है छोड़ दो, 2 into f 3, g यानी 4 और h यानी compulsory k/2, a 0 है b 0 है ये छोड़ दो,
माइनस सी, सी यानी कितना है 4, एच स्क्वायर यानी के स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। ये कैंसिल होता ना, ये 12 के माइनस कितना ये के स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। ये देखो ये 4 will get cancel, 3 4 are 12 k minus k square equal to 0। क्या निकलता है यहाँ से k कॉमन, 12 माइनस k इक्वल टू 0। हाँ फिर क्या होता है ये k इक्वल टू 0 और 12 माइनस k इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू 12। You will get k equal to 0 or k equal to 12। This is second equation, second question from question number 6। और ये जो थर्ड है, थर्ड भी बहुत इजी क्वेश्चन है। It will be homework for you according to your given PDF। क्वेश्चन नंबर 7, सेम एक्सरसाइज नंबर 4.3, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड p and q if the equation यानी x square xy y square x y q। You should know this is general equation of second degree in x and y। क्या है ये represents a pair of perpendicular lines। You have to find p and q। कंपल्सरी we know ये 7th में given equation हमारे पास है px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q equal to 0। हाँ पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन यू नो वेरी वेल है ना। क्या है पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन हमारे पास है ना, सिंस given equation 1 represents a pair of lines, therefore d and what abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0। इसके लिए क्या होना हमें abc fgh। हाँ उसके लिए करो इसको comparing with क्या है ये comparing with यानी ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 है। हाँ क्या है ये a इक्वल टू p है, 2h का वैल्यू -8 है, p का वैल्यू 3 है, 2g के लिए 14 है, 2f है ना कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 2 और c के लिए q है, f के लिए 1, g के लिए 7 और h के लिए 4। हाँ क्या है ये इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ क्या है परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ क्या ये सिंस इक्वेशन 1 है ना, वी नो वेरी वेल ये है परपेंडिकुलर लाइंस यानी को ऐसा ले सकते हैं given equation 1 represents क्या है परपेंडिकुलर लाइंस यानी मालूम है ना a plus b equal to 0। a plus b मालूम है a का वैल्यू हमारे पास है p और प्लस b के लिए क्या है b के लिए 3 equal to 0 यानी p equal to what p equal to मेरे पास है -3 ये वाला। हाँ देन बाद में गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ क्या है ये पेयर ऑफ लाइंस आल्सो यानी व्हाट हमारे पास यहाँ पर है परपेंडिकुलर लाइंस और यहाँ पर क्या है आल्सो गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। हाँ पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन देख लो फिर क्या है a यानी मेरे पास क्या है p का वैल्यू -3, b यानी 3, c यानी q प्लस 2, f कितना है 1, g कितना है 7, h कितना है 4 माइनस a के लिए p यानी व्हाट माइनस प्लस 3, f स्क्वायर यानी 1, b यानी 3, g स्क्वायर g यानी कितना है 7 का स्क्वायर 49 माइनस c यानी q h स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू 0। देख लो फिर -9q प्लस 8 into 7 है ना 14 4 56 प्लस 3 माइनस 3 into 49 समझ में आता ना 7 यानी 12 प्लस
14 माइनस 16 क्यू इक्वल टू 0। कितना है ये दोनों? माइनस 25 क्यू। अब ये 56 प्लस सॉरी कितना आता देखो ये बराबर है कितना आ रहा है हाँ ये क्या है 28 इंटू 56 और फिर ये कितना आ रहा है ए यानी व्हाट पी का वैल्यू कितना है -3 ये -3 हाँ देख लो बराबर क्या है ये हाँ देन आई थिंक यहाँ पर प्लस माइनस साइन देख लो बराबर हाँ क्या है ये हाँ ये पी यानी a प्लस बी यानी ये p प्लस 3 p का वैल्यू -3 माइनस माइनस 9 बाद में a f स्क्वायर यानी 1 ये माइनस b सॉरी ये क्या है माइनस b यानी 3 ये बाद में a माइनस b यानी माइनस में कितना आ रहा प्लस 3 आ रहा ये 16 और ये 9 यानी 25 क्यों हाँ बाद में कितना आता ये 147 ये 147 वाला कितना है ये भी देख लो माइनस माइनस प्लस है क्या बीच स्क्वायर ये माइनस है यानी ये प्लस है और ये माइनस है यहाँ पर साइन उसको भी प्रॉब्लम में देख लो बराबर हाँ क्या है साइन हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो p x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0 हाँ बाद में a f स्क्वायर a यानी माइनस माइनस प्लस क्या हुआ ये प्लस 3 हुआ बाद में f स्क्वायर यानी 1 b यानी 3 और g स्क्वायर यानी 49 बाद में कितना ये 16 क्यों हाँ इसके बाद देख लो ये क्या है क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये -25 क्यों हाँ ये 59 है ना ये 59 है इसमें से माइनस करो 59 माइनस कितना है 147 है ये देख लो a b c 2f g h a f स्क्वायर b g स्क्वायर और c h स्क्वायर या जो भी है वो रहने दो 59 प्लस 3 कितना ये 56 प्लस 3 यानी 59 147 इक्वल टू 0 फिर कितना आता ये -25 क्यू ये है ये कितना आता ये 17 माइनस 9 है ना कितना आता ये 8 बाद में 13 माइनस 5 13 माइनस 5 अगेन 8 ये माइनस इक्वल टू 0 यानी क्यू इक्वल टू ये माइनस कितना है 88/25 ये क्वेश्चन में आई थिंक वो हमारे टेक्स्ट बुक में समथिंग साइन डिफरेंट है I will provide you correct sign in your next period हाँ देखो क्या है Q equal to ये जो है ना ये प्रिंट मिस्टेक वहाँ पर समथिंग रॉट है उसकी वजह से ये आंसर ऐसा आ रहा है व्हाटएवर में भी रहने दो पहले P का वैल्यू -3 और ये 2 का है ये नेक्स्ट पीरियड में तुम्हारा मैं बताऊंगा हाँ बाद में क्वेश्चन नंबर 8th वन क्वेश्चन देख लो क्या है 8th क्वेश्चन again find p and q if the given equation जो है 2x square plus 8xy plus py square plus qx plus 2y minus 15 equal to 0 हाँ इसमें क्या है ये है इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है हाँ क्या ये a के लिए 2h के लिए 8 देन b के लिए p 2g के लिए q 2f के लिए 2 और c के लिए -15 h इक्वल टू 4 देन g इक्वल टू q/2 और f इक्वल टू 1 हाँ क्या है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट ले सकते कंडीशन हाँ दोनों भी एक साथ ले सकते हैं यानी ये फॉर्म में सिंस given equation 1 represents a pair of parallel lines condition मालूम है ना h square minus ab equal to 0 हाँ h यानी कितना है 4 का स्क्वायर a यानी 2 b यानी p equal to 0
ये 16 इक्वल टू 2p और p इक्वल टू कितना आ रहा है ये 8। हाँ, देन आल्सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये है पैरेलल कंडीशन और आल्सो तुम डायरेक्टली ले सकते हैं इक्वल टू पेयर ऑफ लाइंस कंडीशन a b c प्लस 2f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, therefore क्या आता है, d इक्वल टू a। हाँ, a कितना है हमारे पास 2, b के लिए p का वैल्यू कितना है 8, देन c के लिए माइनस 15 प्लस 2, f के लिए 1, g के लिए क्या है q/2 और h के लिए क्या है ये h, हाँ यानी 4। हाँ, देन माइनस a यानी 2 f स्क्वायर 1, b कितना है, b के लिए अगेन b के लिए हमारे पास क्या है p है ना, ये b यानी p का वैल्यू कितना है हमारे पास 8, b g स्क्वायर के लिए q स्क्वायर बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस कितना ये 15 है, माइनस माइनस प्लस 15 c h स्क्वायर यानी what 16 इक्वल टू 0। हाँ, देख लो फिर क्या है ये, हाँ 2 8 का 16 इनटू क्या है ये माइनस 15 है, 2 कैंसल प्लस 4q है, देख लो ये 2 f1 g q/2 और ये h, देन ये माइनस 2 4 या 4 2 जा कितना रहा है माइनस 2 और ये माइनस 2q का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 16 इक्वल टू 0, ये प्लस और ये माइनस, फिर कितना ये दो है ना, माइनस दो कॉमन लो क्या मिलता है ये q स्क्वायर प्लस बिकम्स माइनस 2q माइनस बिकम्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी और ये तो आता नहीं है साइड में, दिस विल बी कैंसल, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर यानी q माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1, यानी तुम्हारे पास क्या है वैल्यू, therefore p का वैल्यू 8 है एंड q का वैल्यू 1 है।